نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مختلف طریقے سے اسلام پر، قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر شکوک و شبہات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان شکوک و شبہات میں سے چند شبہات کا ازالہ دلائل کے ساتھ یہاں فرمایا۔ ان میں سے ایک شبہ یہ تھا کہ دیکھیے قرآن پاک میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پہ ایک حکم پہلے نازل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس حکم کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، پھر ایک دوسرا حکم اس کی جگہ پر نازل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تبدیلی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک نعوذ باللہ خود ہی بنا کر لے آتے ہیں، تبدیلی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، وَإِذَا اور جب، بدلنا ہم بدل دیتے ہیں، آیتاً ایک آیت کو، مکان آیتن دوسری آیت کی جگہ، ایک آیت تبدیل کر دی اس کی جگہ دوسری آیت نازل فرما دی، منسوخ کر دی پہلی آیت۔ بعض جگہ پر تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے اور بعض جگہ پر تلاوت باقی رہتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اشکال ان کا تھا۔ اللہ نے جواب دیا واللہ اعلم بما ينزل، اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ اتارتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جو اتر رہا ہے اور پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں۔ جس طرح آج کا کوئی طبیب اور ڈاکٹر مریض کو پہلے ایک نسخہ دیتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نسخے کے بعد تبدیلی آئے گی، پھر میں اس کو یہ نسخہ دوں گا، لیکن وہ مریض کے ساتھ یہ ڈسکس نہیں کرتا، وہ خود دوائی دے دیتا ہے۔ جب ایک انسان اپنی دوائی کے اندر اپنے علاج کی ضرورت کی وجہ سے تبدیلی کرتا ہے تو اللہ کی ذات انسان کے علاج کے لیے تبدیلی کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ کو پتہ ہے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں احکامات اور تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات تبدیل فرما دیے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے بعد اب تبدیلی ختم ہو گئی، قیامت تک یہی دین باقی رہے گا، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قالوا انما انت مفتر، یہ آیات کی تبدیلی کو دیکھ کر کہنے لگے، قالوا کہنے لگے انما انت مفتر، کہ بے شک تو مفتر ہے، خود بناتا ہے، قرآن پاک خود بناتا ہے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر کو تو خبر ہی نہیں ہے۔ جس طرح ایک آدمی نشے میں ہو، بے عقل ہو،
ज़ुबान से क्या बोल रहा है कोई पता नहीं। इसी तरह ये नशे में और बेअक्ल हैं, इनको कोई पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बल अक्सरहुम ला यालमून, अक्सर कोई इल्म ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं क्या कह रहे हैं। कुल बता दीजिए इनको, नज़्ज़लहु, इसको उतारा है रूहुल कुदुस, रूहुल कुदुस ने। रूहुल कुदुस इससे मुराद हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इसको रूहुल कुदुस लेकर आए हैं मेरे रब्बी का, तेरे रब की तरफ से, बिल हक की, बिला शुबा, हक के साथ। लियुसब्बित अल्लदीना आमनो, ताकि साबित रहें, अल्लदीना आमनो, ईमान वाले। अल्लाह कुरान नाज़िल फरमा रहे हैं, कुरान पाक को नाज़िल होते देखकर ईमान वाले साबित कदम रहें, डटे रहें, इस्तिकामत पर रहें। वाहुदन, और ये कुरान पाक हदायत का ज़रिया, व बुशरा, कुरान पाक खुशखबरी का ज़रिया, लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। एक इल्ज़ाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह था, मक्का मुकरमा में एक लोहार रहता था, तलवारें बनाया करता था। उसका नाम था बलआम या मकीस, काफ दो नुक्ते वाले के साथ। और वो साबका किताब इंजील के बारे में इल्म रखता था, उसको पढ़ा करता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत प्यार रखता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आते जाते थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आ जाते। इल्ज़ाम लगाने वालों ने एक दिन इल्ज़ाम लगा दिया, जनाब हमें पता चल गया कुरान किधर से आ रहा है, ये तो इनसे सीख के, लोहार से सीख के हमें बताई जा रहा है। ये बेवकूफ़ वाना बात देखो कि कुरान की अज़मत क्या है, कुरान की शान क्या है, कि कुरान पाक के चैलेंज इनके सामने कि लेकर आओ, कुरान पाक पूरा तुम्हारे सामने है, लाओ एक आयत तो इसकी मिसल लेकर आओ। एक सूरह कौसर, इसके बारे में चैलेंज कर दिया गया कि इसकी मिसल लेकर आओ। ऐसी तो लाकर दिखा नहीं सके, और तरह तरह के शकूक व शुबहात और क्या क्या लोगों के दिमाग ख़राब करने पे लगे हुए, और कहने लगे ये तो इस लोहार से सुन के आता है और आकर हमें बता देता कि ये कुरान नाज़िल हो गया। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ने इसका जवाब दिया। और वो जो लोहार था वो रूम का रहने वाला ग़ुलाम था, रूमी ग़ुलाम था और आजमी था। आजमी कहते हैं अरबी के अलावा जितनी भी ज़ुबानें वाले लोग हैं, अहले अरब के अलावा जितने भी लोग हैं, इन सब को आजमी कहते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया कि मेरे कुरान के बारे में कैसी बातें करनी शुरू कर दी तुमने। वलक़द नअलमु, अलबत्ता तहकीक हमें मालूम है, अन्नहुम, कि बेशक वो लोग, यक़ूलूना, कहते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु, कि बेशक इसको सिखाता है, बशरुन, एक इंसान। हमें अल्लाह ताला ने कहा हमें मालूम हो गया है, हमें पता है कि तुम हमारे नबी के बारे में क्या बातें कर रहे हो, कि इसको एक इंसान सिखा रहा है। और किस इंसान का इंतखाब किया, लिसानुल्लज़ी, उसकी ज़ुबान, युल्हिदूना, जिसकी तरफ ये निस्बत करते हैं, इलैहि, आजमीयुन, उसकी ज़ुबान तो अजमी है, वहाज़ा लिसानुन अरबियुन, और ये कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है, मुबीन, साफ शफाफ। कहाँ एक आजमी ज़ुबान और कहाँ अरबी ज़ुबान। अरे बेवकूफ़ो, तुम खुद अरब थे और कुरान पाक की फसाहत और बलागत के मुकाबले में तुमने हार मान ली कि हम इसके मुकाबले में कुछ नहीं बना सकते, अब कुछ और नहीं मिला, तो एक रूमी लोहार ग़ुलाम, उसके बारे में कहना शुरू कर दिया कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह सिखा रहा है।
इन्नल्लज़ीना ला युमिनून, बेशक वो लोग जो ईमान नहीं रखते, बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों पर, ला यहदीहिमुल्लाह, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता। जिसका ईमान नहीं है, यकीन नहीं है अल्लाह की आयतों पर, अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक ही नहीं देता। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक किस्म का अजाब होगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तिरा का, झूठ का इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नमा, बेशक, यफ्तरिल कज़िबा, बनाते हैं झूठ, अल्लज़ीना, वो लोग, ला युमिनून बिआयातिल्लाह, जो नहीं ईमान रखते अल्लाह की आयतों पर। ये जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे इफ्तरा बांध रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि आप लोहार के पास जाते हैं या ख़ुद अपनी तरफ से बनाकर अल्लाह की तरफ निस्बत करते हैं, ये अल्लाह का कुरान नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कुरान अल्लाह का, लोहार के पास नहीं जाते, अपनी तरफ से नहीं बनाते, और ये अल्लाह की तरफ झूठी निस्बतें नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग अल्लाह की तरफ झूठी निस्बतें कर रहे हैं जो अल्लाह के कुरान को मानते नहीं हैं। कि अल्लाह का कुरान है और वो कहते हैं नहीं ये कुरान नहीं है, तो ये अल्लाह की तरफ तो झूठी निस्बतें ये लोग कर रहे हैं। व उलाइका हुमुल काज़िबून, यही लोग झूठे हैं। अब इसके बाद मामला आ गया इस्लाम से फिर जाने का। इस्लाम से फिरने को कहते हैं इर्तिदाद, मुर्तद होना। एक आदमी, उसको ज़बरदस्ती काफिर ने पकड़ लिया, कैदी बना लिया और मजबूर किया गया हालत इज़्तिरारी में आकर कि कलमा कुफ़र कहो। सवाल, क्या इसके लिए अपनी जान बचाने की खातिर कलमा कुफ़र कहने की इजाज़त है? ये इसका जवाब आज की सारा कुरान पाक के आयत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वाक़या पेश आया। इब्तिदाए इस्लाम का ज़माना है, बिल्कुल इब्तिदा में कुछ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इस्लाम में दाखिल हुए। उनमें एक नाम हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक नाम इनके वालिद मोहतरम हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक नाम इनकी वालिदा मोहतरमा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस इब्तिदाई ज़माने में एक नाम है हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जिनके नाम लिए गए, इनको मुशरिकीन मक्का ने पकड़ लिया। किस गलती पर, किस जुर्म पर कि तुमने इस्लाम कबूल क्यों किया, और इनको पकड़कर मक्का में कैद कर दिया गया। अब इनके सामने एक ही ऑप्शन रखा गया कि या तो इस्लाम छोड़कर कुफर पर आ जाओ, कलमा कुफर बोल दो, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब ये बात रखी गई, उन्होंने कहा तुमने जो करना है कर दो, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से कलमा कुफर नहीं कहूँगा। डट गए, ईमान पर साबित कदम हो गए, और मुशरिकीन मक्का ने उनको शहीद कर दिया। इनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत अम्मार की वालिदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की सबसे पहली शहीदा खातून, इस्लाम कबूल करने के जुर्म में पकड़ के कैद कर दिया गया।
इनके सामने ये बात रखी गई, इस्लाम छोड़ दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। उन्होंने कहा जान का बचना क्या, इस्लाम कभी नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम तो इन लोगों के पास था। आज भी जब इनके तज़किरे पढ़ते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और दिल और जान इस बात का इकरार करता है कि इनके इस्लाम को सैल्यूट पेश किया जाए कि इस्लाम वाकई इन लोगों के पास था। अभी इब्तदाई ज़माना, बिल्कुल इब्तदाई, और डट गए इस्लाम पर। और इनके लिए अबू जहल, इस उम्मत के जालिम तरीन शख्स ने ये सज़ा तजवीज़ की। 2 ऊँटों को लाया गया, एक ऊँट के साथ इनकी एक टांग को बांध दिया गया, दूसरे ऊँट के साथ दूसरी टांग को बांध दिया गया, और इनके शर्मगाह पर एक तीर चलाकर ऊँटों को भगा दिया गया और इनको 2 टुकड़े कर दिया गया। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो गईं, लेकिन कलमा कुफ्र ज़ुबान से नहीं कहा। हज़रत अम्मार, इनके बेटे, ये अलग थे, इनसे बातचीत की गई। इन्होंने ज़ुबान से उनके कहने पर कलमा कुफ्रिया बोल दिया। अब परेशान होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, रिहाई तो मिल गई। हुजूर, बड़ा गज़बनाक मसला हो गया। फरमाया क्या हुआ? काफिर ने कैद कर लिया और कलमा कुफ्र ज़ुबान से निकल गया। पूछा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मार दिल सलामत था या दिल भी डावाडोल था? अर्ज़ किया हुजूर, दिल बिल्कुल सलामत था और सिर्फ ज़ुबान से अपनी जान बचाने की खातिर कहा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी इजाज़त है। यह उस सूरत में है जब इंसान को ख़तरा हो कि मेरी जान चली जाएगी, तो रुख्सत है, लेकिन अज़ीमत इस पर है कि डट जाए, अगर जान जाती है तो चली जाए, लेकिन रुख्सत है। अगर ऐसे मौके पर कहने की ज़रूरत पड़ गई तो कलमा कुफ्रिया ज़ुबान से कह सकता है, बशर्ते कि दिल मजबूत हो। एक सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के जुर्म में पकड़ लिया गया, जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई। इनके गले के अंदर रस्सी डाल के इनको घसीटा गया, जिस्म पर भारी पत्थर रखा गया, लेकिन ये सब कुछ तकलीफ़ें बर्दाश्त कर गए, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा, ज़ुबान से कलमा कुफ्रिया नहीं कहा। एक सहाबी हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको भी इब्तदाई ज़माना में मुशरिकीन मक्का ने पकड़ के कैदी कर लिया, और कैदी बनाने के बाद इनके सामने भी यही मामला हुआ। इन्होंने कहा कि मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता, इनको भी शहीद कर दिया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग हुई, जिसने नबुव्वत का झूठा दावा किया था। यहाँ पर एक सहाबी हज़रत खुबैब बिन ज़ैद, ये कैदी बन गए और मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इनको पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और इनको कहा कि तुम मुझे नबी मानते हो? उनका बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं मानता। उसने कहा कि अगर तुम उनको नबी मानते रहोगे और मुझे नबी नहीं मानोगे तो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने कहा जो करना है कर दो, जो करना है कर दो। इस जुर्म में कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा क्यों पढ़ा, इनके साथ मोहब्बत क्यों की,
ان کے ساتھ عشق کیوں کیا؟ حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب نے صرف شہید نہیں کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، رومیوں کے ساتھ لڑائی جاری ہے۔ ایک جماعت مسلمانوں کی ان کی قید کے اندر آ گئی، رومی بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کو پیش کیا گیا۔ وہاں پر بھی اس نے کہا ایمان چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اس وقت جو صحابہ اکرام کی جماعت تھی، ایمان والوں کی جماعت تھی، ان کے سردار اور قائد تھے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رومی بادشاہ نے ان کو کہا کہ آپ ہر قسم کی آفر آپ کے لیے ہے، اگر آپ اسلام چھوڑتے ہیں، میرا مذہب اختیار کرتے ہیں، آپ کو آدھی بادشاہت دوں گا، اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرواؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے اس انکار کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا جو چاہتے ہو کر لو۔ تانبے کا ایک بہت بڑا برتن منگوایا گیا، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، تیل کو گرم کیا گیا۔ جب تیل کھولنا شروع ہوا، ایک ساتھی مسلمان ان کا پکڑا اور پکڑ کے اس کو اس تیل کے اندر ڈال دیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر کوئلہ ہو گیا۔ دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ ان کی باری آتی ہے اور ان کو پکڑ کر ڈالنے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رومی بادشاہ نے بلایا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تیرا دل نرم پڑ گیا، تو میرا مذہب اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، اب بھی تیرے پاس موقع ہے۔ اس نے کہا تو غلط سمجھا ہے۔ رویا کس لیے تو؟ اس نے کہا میں اس لیے رویا ہوں کہ اللہ، میرے پاس تو صرف ایک جان ہے جو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت اور ایمان پر قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر قربان کر کے رکھ دیتا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو استقامت کا پہاڑ ہے، اس نے ان کے قتل کا اور ان کو جلانے کا فیصلہ ختم کر لیا۔ کہنے لگا آپ کو میں رہا کرتا ہوں، ایک کام کرو۔ کہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میری پیشانی کو بوسہ دو۔ رومی بادشاہ کہنے لگا میری پیشانی کو بوسہ دو، تمہارے اس عمل کو کرنے کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا، رہا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، بوسہ دے دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ میرے جتنے مسلمان قیدی ہیں سب کو چھوڑ دو، سب کو رہا کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے بوسہ دے دیا، اس نے سارے قیدی رہا کر دیے۔ آپ جب واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کارگزاری سنائی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دیگر مسلمان ان کے درمیان بیٹھے ہوئے، اور آپ کھڑے ہوئے اور اٹھ کے آپ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور جتنے مسلمان بیٹھے تھے سب کو فرمایا، بیچ میں صحابہ اکرام بھی، فرمایا سب اٹھ کے باری باری حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی کو بوسہ دو۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک چھوٹا سا عمل کر کے اتنے لوگوں کی جان بچا لی۔ من کفر باللہ، جس نے کفر کر لیا اللہ سے، جس نے انکار کر دیا اللہ کا، من بعد ایمانی ہی، اپنے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ بندہ اکرہ جس کو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن، اور اس کا دل مطمئن تھا بالایمان، ایمان پر، ویسے مجبور کر دیا گیا،
हालत इज़्तिरारी में चला गया, हालत मजबूरी में चला गया, लेकिन दिल मुतमईन था। इसका हुक्म अलग है। वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सदरन, लेकिन वो बंदा शरह जिसने खोल दिया, बिल कुफ्रि कुफर, सदरन दिल से, जिसने दिल से कुफर कर लिया, फ़अलैहिम गज़बुम मिनल्लाह, उन पर गुस्सा है अल्लाह का, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। किस लिए? ज़ालिका, ये इसलिए, बिअन्नहुम, कि बेशक ये लोग वो हैं, इस्तहब्बुल हयात दुनिया, जिन्होंने पसंद किया, तलब किया दुनिया की ज़िंदगी को, अलल आखिरती, आखरत के मुकाबले में। इन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखरत के मुकाबले में पसंद कर लिया। व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बेशक अल्लाह ताला नहीं हदायत देते काफिर कौम को। उलाइकल्लज़ीना, ये वह लोग हैं, तबा अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने, अला क़ुलूबिहिम, इनके दिलों पर, व समइहिम, इनके कानों पर, व अबसारिहिम, इनकी आँखों पर, व उलाइका हुमुल गाफिलून, और यही लोग गाफिल हैं, बेहोश हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इनके दिल, कान, सब जगह पर मोहरें लग चुकी हैं, और इनको कोई होश नहीं है कि हमने क्या करना। ये तो गाफिल हैं, बेहोश हैं। ला जरमा अन्नहुम फिल आखिरती, ला जरमा यकीनी बात है, अन्नहुम, के बेशक वो लोग, फिल आखिरती, आखरत में, हुमुल खासिरून, खसारे में होंगे, घाटे में और नुकसान में होंगे। सुम्मा, फिर, इन्न रब्बका, बेशक तेरा रब, लिल्लज़ीना, उन लोगों को, हाजरू, जिन्होंने हिजरत की, मिन बादी मा फुतिनो, बाद इसके कि उनको मुसीबत पहुंची, मुसीबत उठाई उन्होंने, यानी पहले इस्लाम आया और इस्लाम आने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनको मुसीबतें झेलनी पड़ी, फिर उन्होंने हिजरत की। सुम्मा जाहदू, फिर जिहाद किया, व सबरू, और सब्र का पर कायम रहे। इन्न रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, बेशक तेरा रब इनके बाद बख्शने वाला है, इनको रहीम और रहम करने वाला है। कि ईमान लाने के बाद डट गए और फिर वहाँ से मौका मिला तो हिजरत कर गए, छोड़ दिया कुफ़ार की बस्ती को। अल्लाह फरमाते हैं इन लोगों पर अल्लाह ताला मेहरबान है, इन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला रहमत करने वाला है, इनकी मग़फ़रत करने वाला, इनकी बख्शिश करने वाला। अब ये जो वाक़यात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन की हमारे सामने तज़किरा किया गया, उनकी साबित कदमी और ईमान का, एक तरफ जान जा रही है और एक तरफ छोटी सी बात कहने की देर है, जान बच सकती, रुखसत भी है इस्लाम की तरफ से, लेकिन उन्होंने जान की बाजियां लगाकर हमें सबक दे दिया कि ईमान पर कभी समझौता नहीं हो सकता। और हम इतने ढीले पड़ गए, हम इतने कमज़ोर पड़ गए कि छोटी सी बात पर हम दीन और इस्लाम के साथ समझौता करके बैठ जाते हैं। शादी का मौका आया, हमने दीन और इस्लाम के साथ समझौता कर लिया, ठीक है जी, अभी कुछ देर के लिए हम बरादरी की मान रहे हैं, दीन इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। गमी का मौका आया, आबा व अजदाद क्या किया करते थे, बड़े क्या करते थे, बस वही करेंगे, दीन इस्लाम क्या है ये कोई पता नहीं, पूछने की भी ज़रूरत नहीं, अगर कोई बताएगा उसकी बात नहीं माननी, हमारे बड़े अब तक ऐसे ही करते थे। यानी अपनी ख्वाहिशात नफसानी साथ साथ पूरी कर रहे हैं, जब जी चाह दीन पर अमल कर लिया, जब जी चाह ख्वाहिशात नफसानी पर कर लिया। अब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन के ईमान को, उनके इस्लाम को अपने सामने रखें, ऐसे वाक़यात जज्बे वाले, शुजाअत, बहादुरी, दिलेरी वाले ये सामने रखकर अपने ईमान का पैमाना चेक करें, क्या हमारा इस्लाम बाकी है, कितने ज़र्रे बाकी है और कितने परसेंट बाकी है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और दिन रात हमें अपने इस्लाम और ईमान के बारे में सोचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।